Namaskar and welcome once again. We start with the first session of the seminar on Mera Rang De Basanti Chola Azadi Ka Amrit Mahotsav is what we are celebrating in the context of the freedom struggle in Punjab. And therefore the three chosen topics, and we are starting with the first one. The first one is called the Gadar movement, which you heard much references to and excerpts on, and part of the Gadar poetry also by Dr. Sonal Mansingh ji. So we start this without much ado. I request all of you who are in the foyer to please come in and take your seats here. Those who are sitting in the auditorium, should you want to come a little bit more in front, you can do that and change your seats for now, because this is a seminar session dedicated to seminar speakers and seminar audience. So now, on behalf of the Kumar Diwan Foundation, I do welcome you to this very, very beautiful, beautifully curated seminar by none other than our very own legendary historian, Professor Kapil Kumar ji, on the topic of the Punjab freedom struggle. The first session is on the Gadar movement, as I said, and chairing this is Professor Suraj Basuji. So I invite Professor Suraj Basuji to please come on stage and take his chair. Thank you, sir. We are very encouraged by your presence here today. I also invite the speaker for this session is Professor A.S. Narang. Sir, kindly come and take your seat on the stage. I'd like to introduce the chair as well as the speaker for today's session, the Gadar movement, with particular reference to Punjab. Professor Suraj Basuji, who's very graciously consented to chairing this session, is presently the chairperson of History Faculty, School of Social Sciences, IGNOU, New Delhi, and he has a PhD from Calcutta University. His area of specialization is modern Indian history with special thrust on social and cultural history. 3 books to his credit and over 30 papers in various journals and top-notch journals of the country. To his credit, 3 decades of teaching sir has done, number of many statutory bodies of the Delhi University, etc., have had him on formulating multiple policies on education. He is a very, very well-known academician, and we are very personally grateful to have him for chairing this session on the Gadar movement. Thank you, sir. Thank you. The speaker is Dr. Professor A.S. Narang ji. Professor Amarjit Singh Narang ji is a professor of political science, retired, and a former registrar of IGNOU. Sir has a PhD from Delhi University, 45 years of teaching and research work, and experience at the Delhi University and JNU and IGNOU. Sir has been a fellow at Brock, McGill, and at the Queen's Universities, and at the Indian Institute of Advanced Studies in Shimla. Sir has published 8 books and over 60 papers in journals in the top-notch publications of the country. Indian politics, comparative politics, ethnic studies, and Punjab and Sikh studies in particular are his areas of forte and interest. Welcome, sir, Narang sir, to this first session of the seminar, and we welcome you as a speaker on the Gadar movement with particular reference to Punjab, sir. Over to you, sir. My only request, sir, is that we have Professor Kumar has conveyed the time. बहुत ऊंचा है ये, बहुत ऊंचा है. It's too high. निवेदन सिर्फ ये रहेगा जी. We'll have the speaker speak and put his views forward. Time has been given for that, I think 30 minutes, and then the chair will give the chair comments and sum up in about 10 minutes or so of finishing that, so that we can move to the next sessions. We are just a tad bit delayed, otherwise everything else is going on fairly.
Ji, sir. Sir. We'll do that. We'll do that, sir, as it goes. Thank you. Over to the two of you. Thank you, sir. आप आ जाए. आपको तो ये नहीं चाहिए. नहीं, हमें भी है. ये कैमरे के पीछे जो छुपे हुए आप लोग आगे आ गए हैं. इतनी बुरी शक्ल नहीं है किसी की भी. प्लीज फील फ्री. अब मैं हाउ टू एड्रेस स्वराज चेयरमैन. मिस्टर चेयरमैन, माय डियर फ्रेंड स्वराज बासु, कपिल जी एंड अदर्स. सुबह के सेशन के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि अब उस रोमांच को कैसे कायम किया रखा जाए. जो आरिफ साहब ने कहा कि रोमांच एक क्रिएट हो गया है. फिर भी अब बात है, देखिए सबसे पहले तो ये जो बात सुबह से कही जा रही है कि जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें कई ऐसे योगदान हैं जिनको याद नहीं किया जाता, समझा नहीं जाता, जाना नहीं जाता. मालूम नहीं आप में से कितनों को ये पता है, क्योंकि मुझे स्वयं आज ही पता चला कि आज भी वो एक ऐसा दिन है जिस दिन दो क्रांतिकारियों को, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, 8 मई 1915 को दो क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी. और वो क्रांतिकारी कौन थे? एक उनका नाम था अवध बिहारी जी और अमित चंद जी. इन्होंने 23 दिसंबर 2015 को दिल्ली के चांदनी चौक में उस वक्त इंडिया के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था. लेकिन ये चाहस है कि कौन कब किसी को बता दे जिसको ये चीज़ें पता हैं. रूटीन में तो ये कहीं हमें मिलती नहीं. जैसे कपिल कह रहे थे, एक हैं हमारी मित्र हैं जो क्रांतिकारियों के बारे में इतनी उंगलियों पे टोपे हर चीज़ पे उनके पास कपिल ने जानकारी कराई थी. तो उनसे आज पता चला कि आज, और फिर उनमें से एक को 10 मई को फांसी दी गई थी, उन 3 को जिन्होंने बम चलाया था. सुबह कुछ बातें कही गई गदर मूवमेंट के बारे में, और एक बताया गया कि शायद गदर मूवमेंट की जो आरंभ है वो जुलाई 2013 में हुआ था. लेकिन गदर मूवमेंट के बारे में एक इशारा किया गया था, शायद सोनाल मानसिंह जी ने किया था. उसकी एक विशेषता के बारे में, क्योंकि समय कम है और मैं उस इतिहास में और उन डेट्स में नहीं जाऊंगा, कुछ मोटे मोटे मुद्दे आपके सामने रखूंगा. गदर मूवमेंट अपने आप में एक बड़ी यूनिक मूवमेंट है. उस मूवमेंट के बारे में इतिहास में बहुत कुछ नहीं मिलता. इन जनरल भारत की स्वतंत्रता संग्राम की बात नहीं कर रहा. सोनाल जी ने सुबह इशारा किया कि ये वो मूवमेंट थी जिसमें बाहर से लोग भारत आए स्वतंत्रता के लिए, चाहे वो भारतीय थे. इससे पहले इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसी शायद कोई जानकारी नहीं मिलती कि बाहर से लोग देश में आकर के स्वतंत्रता. तो ये पहली यूनिक बात थी गदर मूवमेंट की, जो बाद में फिर आजाद हिंद फौज में भी अपनाई गई. लेकिन ये वो लोग थे जो भारत में नहीं रहते थे, बाहर से आए थे. और दूसरी बात गदर मूवमेंट के बारे में मैं एक और जी आपको जानकारी दूं कि ठीक है कि इसकी जो ऑफिशियल हम कह सकते हैं कि आरंभ जो है वो जुलाई 1913 में होता है. लेकिन इसकी जो नींव है उसका आरंभ हो जाता है 20वीं सदी के आरंभ से. और एक बहुत बड़ी घटना है जिसकी फिर चर्चा हम भूल जाते हैं. 1907 50वीं वर्षगांठ थी भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की 1857 को. 1907 को जो ये वर्षगांठ थी उसको किसी एक महान क्रांतिकारी ने लंदन में उसके लिए एक सभा की. उनका नाम था वीर सावरकर.
2017 को गोल्डन जुबली स्वतंत्रता संग्राम की मनाई गई और उस सभा में सावरकर ने ये कहा कि हमें इस बात पे खेद है कि जिन लोगों ने 1857 में शहादत दी, हम उनकी जो आशाएं हैं वो अभी तक 50 साल में पूरी नहीं कर पाए। लेकिन मैं इस बारे में आश्वस्त हूं कि जब इसकी वो क्या कहते हैं डायमंड जुबली मनाई जाएगी, तो 2017 के पीरियड के आसपास आती है, तब तक हम ये लक्ष्य पूरा कर लेंगे। लक्ष्य क्या था? भारत की स्वतंत्रता। उस 2007 की इस जो सभा थी, इसको जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, जो कपिल पढ़ रहे होंगे, उन्होंने बहुत सीरियसली लिया, बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि बाद में ये चीजें सामने आती हैं। एक हमारे साथी हैं सीनियर प्रोफेसर हरीश पुरी, और उनके साथ कपिल ने संबंध भी किया है, और हरीश पुरी ने भी मुझसे फ़ोन पे बात की थी। शायद पंजाब में इस विषय पर वो बोलेंगे। वो अथॉरिटी हैं गदर मूवमेंट पे, अमेरिका में जाकर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके उन पर रिसर्च की है। तो उन्होंने बताया कि एक क्रांतिकारी को बाद में एक अंग्रेज अफसर ने ये बात बताई कि इंग्लिश सत्ता 1857 से इतनी ज्यादा भयभीत थी, उनके मन में एक बहुत बड़ा डर था कि ये भी हो सकता है, जिसकी बात सुबह कभी कभी ने की थी। और इसलिए सभी अंग्रेज अधिकारियों को ये डायरेक्टिव थी कि जो भी भारत में काम करने के लिए आ रहा है, पहले इस क्रांति की पूरी जानकारी पढ़ ले कि ऐसा भी होता है। इसलिए जब 2007 में ये बात लंदन में कही गई, तो उनको चिंता और बढ़ गई कि अब ये बात भारत में नहीं, भारत से बाहर से क्रांति कराने की बात भी हो रही है। तो यहां से एक दूसरा ये कि फिर ये कोइंसिडेंस नहीं माने जा सकते, कहीं ना कहीं चीजों का लिंक है। 20वीं सदी के आरंभ में ही 2006 में कांग्रेस में भी एक नई, अच्छा, हम जिस कांग्रेस की बात करते हैं, मैं सभी को यह प्रार्थना करूंगा कि उस कांग्रेस को आज की कांग्रेस के साथ जो आलोचना करते हैं वो भी ना माने और खुद कांग्रेस वाले भी ना माने। उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस एक स्वतंत्रता मूवमेंट थी, उसमें हर तरह के लोग थे, कट्टर हिंदूवादी, कट्टर सिखवादी, कट्टर मुस्लिमवादी, लेकिन सबके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य था भारत की स्वतंत्रता। तो 2006 में उसके अंदर जो पहला टिपिकल एक तरीका चल रहा था मेमोरेंडम देने का, अपील करने का, उसका विरोध हुआ। और हम हिस्ट्री वाले और पॉलिटिकल साइंस के हम कहते हैं लाल बाल पाल, 3 बड़े नेता हुए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और वो क्या बिपिन चंद्र पाल। अब एक पंजाब से हैं, एक महाराष्ट्र से हैं और एक बंगाल से हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो मांग करने की बात है नहीं चलेगी। उन्होंने वायलेंस की बात नहीं की, बट दे सजेस्टेड कि एक्सट्रीमिज्म इज द वे, अपने हक के लिए लड़ना आवश्यक है। लड़ने की बात अब वहां 2006 में शुरू हो रही है, सॉरी 1906 में शुरू हो रही है, 1907 में वो क्रांति के बाद शुरू हो रही है। ये वो पीरियड भी है कि जब जो खासकर पंजाब से और प्रांतों से लोग देश से बाहर गए हुए थे। पहले वो हांगकांग में, ईस्ट एशिया में ही ज़्यादा थे। इस पीरियड से उनका चलन शुरू होता है कनाडा और अमेरिका की तरफ। कनाडा और अमेरिका की तरफ जाना शुरू करते हैं वो 2000, ये फिर 1901 के आसपास से। पहले वो इधर ही सीमित थे, सिंगापुर में और ये क्या मलाया में और थाईलैंड वगैरह, यहाँ तक ही था। वहाँ जा कर के, अच्छा, इनमें 2 प्रकार के लोग थे। एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स, लाला हरदयाल, परमानंद जी, और भी कुछ नाम थे, मैं इस वक्त इतना टाइम नहीं है। और दूसरा खास करके पंजाब की पीजेंट्री, जो पंजाब के गांव के लोग थे रहने वाले, वो भी वहाँ कनाडा पहुँचते हैं और अमेरिका पहुँचते हैं। अमेरिका में जाकर के एक बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन उनके सामने आती है, बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन उनके सामने आती है। खासकर पहले उसको इंटेलेक्चुअल समझते हैं,
बाद में दूसरों को समझाते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि अमेरिका स्वतंत्र देश है, लोग स्वतंत्र हैं, जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। वो देखते हैं ऐसा भी होता है, इतनी स्वतंत्रता होती है, डेमोक्रेसी होती है, लोग अपनी सरकार चुनते हैं, तो उनकी आंखें खुलती हैं कि है ऐसा भी होता है। और दूसरी कॉन्ट्राडिक्शन ये होती है कि अमेरिका में ही और कनाडा में उनके खिलाफ रेसिज्म हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक स्लेवरी है और रंगभेद की नीति है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन से भी एक चीजें निकलती हैं। तब आपके सामने तीन चीजें इकट्ठी हो रही हैं। 1907 में लंदन की मीटिंग, जिसमें किस चीज को याद किया जा रहा है, 1857 को, और यह कहा जा रहा है कि 1917 तक यह पूरा करना है। दूसरा, विद इन इंडिया अभी रेवोल्यूशनरी उस तरह के तो पैदा चाहे नहीं हुए हैं, लेकिन नेशनल मूवमेंट में एक्सट्रीमिज्म पैदा हो रहा है, विद इन कांग्रेस डिवीजन हो रहा है। और तीसरा, माइग्रेशन उन कंट्रीज में हो रही है जहां पर उनको डेमोक्रेसी भी दिखाई दे रही है और अपने खिलाफ रेसिज्म भी खिलाफ दिखाई दे रहा है। तो वहां पर ये जो बेसिक से हरदयाल जी, सोन सेन बखाना, पंडित काशीराम, ये जो इनको समझ में आता है कि नहीं, ये बात नहीं है, तो हमें भी कुछ करना है, अपने लिए हमें तैयारी करनी है। वहां से ये बात होती है कि कुछ हमें अपने देश के लिए भी करना है। तो सबसे पहले एक उसका नाम था शायद पैसिफिक हिंदुस्तान एसोसिएशन, वो स्थापित की जाती है। फिर ये सोचते हैं कि हमें अब कुछ लिखना चाहिए। तो हरदयाल जी और ये सोन सिंह बखना वगैरह ये मीटिंग करके, मीटिंग इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए नहीं करते कि हमें कुछ, तो वो एक पर्चा निकालते हैं जिसका नाम है गदर। तो शुरुआत पर्चा निकालने से होती है, गदर से। और गदर का नाम जो था उनके स्पष्ट था कि गदर का मतलब मुकाबला नहीं है, गदर का मतलब है एक एनिमी को फेस करना। तो गदर उन्होंने पर्चा निकाला, उस पर्चे ने ही बहुत जल्द ये रूप ले लिया कि अब हम एक गदर पार्टी हैं, गदर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको भारत में जाकर के भारत की स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र क्रांति करनी है। ठीक है। अब यहां पर जो मुख्य बातें मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि एक और बहुत बड़ी जो इसमें योगदान था, ये एक बात ये हुई कि अब इसमें छोटा सा वर्ग विद्यार्थियों का है, इंटेलेक्चुअल्स का है, और बहुत बड़ा वर्ग जो वहां पे रह रहा है वो पीजेंट्स का है, जो इलिटरेट है। सुबह इशारा किया गया कि देश इन पीजेंट्स के लिए, गांव के, भारत के किसी भी क्षेत्र में चलो, उनके लिए देश अपना गांव था, सारी दुनिया ही गांव थी, उनके लिए अपना गांव भी देश था। आजकल कोई इंटरनेट कनेक्शन, फोन कुछ भी तो नहीं था, एजुकेशन भी नहीं थी। वहां पर जाकर पहली बात ये लोग उनको रियलाइज कर रहे हैं कि एक चीज है हिंदुस्तान। तो जो पीजेंट्स हैं, सब हैं, वो अपने आप को अब अपने गांव से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हिंदी, हिंदुस्तान, नॉट इवन पंजाबी। और ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि ज्यादातर लोग पीजेंट पंजाब के लिए, तो इसलिए गदर मूवमेंट का एसोसिएशन पंजाब के साथ हो गया। बट गदर मूवमेंट राइट फ्रॉम बिगिनिंग वाज नॉट ए पंजाब मूवमेंट। उसके आप नाम पढ़ लीजिए लीडर्स के, पंडित काशीराम, क्या नाम, पिंगला का नाम क्या था कपिल, याद होगा तुझे, मैं वहां पे घूम रहा है एज फैक्टर, और लाला हरदयाल, तो ये सब सारे इंडिया से ही अलग अलग क्षेत्रों से थे। तो लेकिन बेसिकली क्योंकि इनका जो मास था, स्पोर्ट मास था, वो पंजाब से था, इसलिए उन्होंने, लाला हरदयाल थे, पंडित काशीराम थे, सोन सिंह बखना और करतार सिंह सराभा, ये तो थे ही। और सबसे पहले जो इन्होंने आरंभ किया था, कपिल ने इशारा किया था, वो हाँ, राजपरी, बहुत सारे थे, मैं नाम मेरे पास हैं सारे, यू वांट टू है एनी हो। और बेसिकली जो इन्होंने जब पर्चा शुरू किया,
और एक प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ करना था, तो वो युगांतर आश्रम से फिर बात की गई थी, वहां पे शुरू किया गया था, कैलिफोर्निया में युगांतर आश्रम से शुरू किया गया था, और पहले ही युगांतर आश्रम बना दिया गया था, तो क्रांतिकारी एक्टिविटी थोड़ी बहुत चल रही थी। और जो शुरू करने वाले थे उनमें खास करके इट वॉज ए पार्टी ऑफ हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स एंड पारसीज आल्सो। हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे और पारसी भी। हिंदू हरदयाल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थे, 2 सिख थे, मुस्लिम था, और उनका जो पहला जो उन्होंने मास्कट बनाया उसमें रखा राम अल्लाह नानक, ठीक है। और ये लीडरशिप थी और थी, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपसे कही तो प्रेजुडिस था दोनों में, इंटेलेक्चुअल्स में भी, कि हम डेमोक्रेसी भी देख रहे हैं और अपनी एक्सप्लॉयटेशन भी देख रहे हैं। तो इससे जब ये बात चली तो इन्होंने ये बात लोगों को बताई। मैंने कहा ना कि ये पलायन जो है 1901 से की शुरू होता है, तो 13 तक लगभग इसको 20 साल हो गए थे। तो वहां लीडरशिप ने ये बताना शुरू किया कि पिछले 20 साल में, मीन्स कि भारत में 20 लाख लोग के करीब जो हैं वो कई प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन के कारण मर चुके हैं। उसमें भूख भी है, हंगर भी है, एक्सप्लॉयटेशन भी है। और क्या हमें इस देश में, अपने देश में गुलामों की तरह रहना है, व्यक्तियों की तरह नहीं रहना? उनके सामने वर्ड था डिग्निटी। हमारी डिग्निटी क्या है? क्योंकि अमेरिका में आप उन वाइट लोगों की डिग्निटी देख रहे थे, व्हाट अबाउट अवर डिग्निटी? इसलिए हमें अब इस देश में करना है। उनका जो मेन मोटिव था वो क्या था? यही कि स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। और जो अपने आप को वो बड़े स्पष्ट शब्दों में जो लिखते थे कि ब्रिगेड इज एनिमी ऑफ ब्रिटिश। ये नहीं कहते कि हम अपने लिए लड़ रहे हो, एनिमी, एक दुश्मन के साथ लड़ाई है हमारी। बड़ा उनको इस बात में स्पष्ट थी। और फर्स्ट इशू ही जो गदर का था उसमें उन्होंने कहा कि वी are going to start a new epoch in Indian history. Today we are going to be instrumental in here, but we have to liberate the people from skelters of British rule, and we will do it from India. मतलब ये वो अपने आप को केवल ज्ञानी या ऑब्जर्वर नहीं बताते, हम यहां से तुम्हें गाइड करते रहेंगे ना। उन्होंने कहा वी विल डू इट फ्रॉम इंडिया। अब समस्या सिर्फ उनके पास ये थी कि उनको ये उम्मीद थी कि 1917 तक वो जो आएगा पीरियड का, तब तक हम ये तैयार हो जाएंगे और भारत में जाकर के। लेकिन जस्ट ए मैटर ऑफ चांस कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गई। अब 13 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है और 14 में उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ा मौका है, 2 कारणों से, कि इस समय ब्रिटेन की जो इंग्लैंड में फौज है वो ब्रिटेन से बाहर लड़ रही होगी, तो ब्रिटेन में बहुत कम फौजी होंगे। और दूसरा कि जो भारत के फौजी हैं उनको भी हम, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय फौजियों में कहीं ना कहीं 1907 से 8 पीरियड थोड़ी थोड़ी बातें शुरू हो चुकी थी, कपिल ने इशारा किया, वो बात की बात भी है, लेकिन तो उन्होंने कहा कि हम उनको अपनी तरफ खींच सकते हैं। इसलिए विद इन 1 ईयर ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन दे हैव टू कम टू इंडिया। अब उनके पास कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा नहीं है। 13 में बनी, वो भी थोड़े से लोगों ने बनी, फॉर्मल एक प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, सब जो भी हैं, एक एडिटर है, लेकिन एक फॉर्मल बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा और जिसका लिंक इंडिया के साथ वो अभी नहीं है। ना ही उनके पास कोई एक पूरी तरह से थ्योरी है, फिलॉसफी नहीं है, सिर्फ एक पैशन है, दैट्स ऑल। गदर मूवमेंट को बहुत सारे लोग लेफ्ट के साथ जोड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हां, गदर में हर तरह के लोग थे।
थोनसेन भाखना वो एनार्किस्ट से प्रभावित थे। भाई परमानंद, और आपको यहां दिला दूं कि भाई परमानंद भगत सिंह के टीचर भी रहे हैं बाद में, इसलिए भगत सिंह बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं इससे। तो इस तरह सब, लेकिन उनके अंदर एक कॉमन था फैक्टर, वो ये, और एक लीडर उन्होंने यहां तक वर्ड किए कि हमें धर्म से भी कुछ लेना देना नहीं है। एक स्थान पर उन्होंने कहा कि हमें ना पंडित चाहिए ना मुल्ला चाहिए, हमारा धर्म एक है, पैट्रियोटिज्म। और यहां तक कह दिया कि लव फॉर पैट्रियोटिज्म इज अबव द लव फॉर गॉड। इसलिए वो जिस समाज की कल्पना कर रहे थे, वो समाज बड़ा सिंपल था, स्वतंत्र होगा, एक उसमें जो लोग हैं मॉरल लेवल पे हाई होंगे, और सम सेंस ऑफ इक्वलिटी होगी, सबकी आवश्यकताएं पूरी होंगी। लेकिन ये नहीं कि वो उसका आधार मार्क्सवाद होगा, ऐसा कहीं नहीं था गदर मूवमेंट के साथ। तो ये उनकी एक प्रॉब्लम सारी थी जब वो आए। और सवेरे इशारा किया गया, सोनाल जी ने कहा कि पहले ही जो उनका पर्चा था, जो गदर था, उसमें उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी दी कि भाई हमें लोग चाहिए। तो क्या थे? वांटेड ब्रेव सोल्जर्स टू स्टेयर अप रेवोल्यूशन इन इंडिया, नॉट फॉर इंडिया। जरा ये बड़े मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, हमें इसलिए अंडरलाइन करना पड़ता है कि वी वांट ब्रेव सोल्जर्स टू स्टेयर अप रेवोल्यूशन इन इंडिया, पे डेथ प्राइस मार्टरडम, पेंशन लिबर्टी, फील्ड ऑफ बैटल इंडिया। हमें वो अमेरिका में भी ये एडवर्टाइजमेंट मांग रहे हैं। और उसके बाद फिर बहुत सारे, अब तो प्रोफाइल छप चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, टाइम नहीं है। तो ये आउटवर्ड जो ब्रेक जो 1914 में होता है, तो इसलिए वो यहां पर भारत में आए। तो उन्होंने अपनी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज भी शुरू कर दी। लेकिन जैसे मैंने पहले इशारा किया कि 2007 के बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज, अगेन आई डोंट नो, ये एज फैक्टर है। तो 1907 के बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत चिंतित हो गई थी, और उन्होंने अमेरिका तक एक खबर पहुंचा दी थी कि भाई अब इन लोगों से सावधान रहो। और 1908 से भारतीयों के वहां कनाडा और अमेरिका जाने पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई थी। एक पाबंदी थी कि जो आना चाहता है उसके पास कम से कम $200 होने चाहिए। दूसरी फिर वो कॉन्टिन्यूट जाने के, जिसका रिजल्ट फिर 1914 में कौमा घाटा मारू हुआ है। मतलब ये था कि लेट देम नॉट अलाउड टू कम। इवन सीआई ने भी, और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी उनमें भी अपनी सरकारों से ये कहा था कि ये वो लोग हैं जो सोशलिज्म से, रेवोल्यूशन से, वायलेंस से प्रभावित है, और इनके इन्फेक्शन से बचो। तो मतलब ये डेंजरस लोग हैं। ये 2008 से बात वहां पर चल चुकी थी। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत अच्छी तरह से इनके ऊपर वाच रख रही थी, और उन्होंने इनके अंदर भी एक बहुत बड़ी अपनी जो है घुसपैठ कर ली थी। तो जब ये 1914 में जब ये वार के टाइम आते हैं, तो उससे पहले ही इनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया, और बहुत सारे लोग जो हैं गिरफ्तार भारत में आने से पहले ही कर दिए गए या भारत में आने के बाद कर दिए गए। उसके बाद उनके ऊपर लाहौर कॉन्स्पिरेंसी के नाम से फेमस मुकदमा है, वो चला, और इन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, जो कुछ फंड वहाँ से मिला, कुछ हथियार वगैरह ला पाए यहाँ के लोगों को देने के लिए। लेकिन उनका बेसिक विश्वास यही था कि हम भारतीय सैनिकों को ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा
करेंगे, और उसमें वो बड़ी स्पष्ट सी बात है कि वो अच्छी तरह से नहीं। बहुत सारे लोग इनके सियासी नेता अरेस्ट हो गए, करतार सिंह सराभा, पंडित काशीराम पिंगले, ये ऐसे लोग थे जो बच गए। इसलिए थोड़ा सा इनके पास ये था कि एक ऐसी लीडरशिप है जो कहीं ना कहीं से कुछ काम करती रहेगी, बट बेसिकली दे वर अरेस्टेड। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अब मैं इस पे आ रहा हूँ कि इनका क्या, इस फेलियर्स के बाद भी क्या इम्पैक्ट होता है, कि वो जो बेसिक इनका लक्ष्य था, लक्ष्य 1917 का रखा था लेकिन 14 को करना पड़ा, तो उसमें हम लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट कि ये फेल हो गए, क्योंकि कारण बड़े स्पष्ट थे, रिसोर्सेज नहीं थे, टाइम नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, और ब्रिटिश इंटेलिजेंस इतनी ज़बरदस्त स्ट्रांग थी कि इनके अंदर तक की खबर उनके पास कहीं ना कहीं से पहुंच जाती थी। ठीक है, और इसीलिए इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू हो गई 14 से ही, इतनी मतलब एज अर्ली एज 2014 काशीराम जोशी हरियाणा के हैं, वो अमेरिका से वापस आए थे, और 15 मार्च 1915 को ही उनको फांसी दे दी गई थी। और जो लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस हुआ उसमें करीब मेरे ख्याल 69 लोगों को फांसी दी गई थी, 249 के करीब को अंडमान काला पानी वगैरह जिसको हम कह सकते हैं दी गया था। और फिर नॉट ओनली इन इंडिया, फाइनली एक सैन फ्रांसिस्को में भी 1917 में इनके खिलाफ केस चलाया गया था, इसका नाम रखा गया हिंदू कॉन्स्पिरेसी। इवन अमेरिका में भी इनके खिलाफ केस चलाया गया। तो इनकी जो, मैंने से कहा ना कि इनको ये वैचारिक आधार पर स्ट्रांग नहीं थे। पंजाबी में इनमें से एक ने कहा कि सानू राजनीति वाला ज्ञान कोई नहीं। अब यहाँ पे वर्ड थोड़ा फिर से गौर से सुनिए कि सानू राजनीति वाला ज्ञान कोई नहीं, वी डोंट नो व्हाट पॉलिटिक्स इज। आओ देशवासियों, हिंदुस्तान वालियों, फिर ये पंजाबी की या पंजाब की या सिखों की बात नहीं हुई, आओ देशवासियों, हिंदुस्तान वालियों, मिलकर सोचिए, क्या मिल बैठ करके सोचिए कि ये अल्टीमेटली राजनीति क्या होती है, हाउ टू डील विद दिस पीपल। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें इतनी आई नहीं। सो दे डिडंट हैव what you call basically large section of intellectuals to support them. They were all simply वो contradiction से निकले हुए और यहाँ देश के बाद देखते हुए वो आ रहे थे। अब जैसे मैंने कहा कि उनका अपना मोटिव तो नहीं हुआ, लेकिन एक दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इससे निकली। एक तो ये कि ब्रिटिश पावर के रोंगटे दोबारा से खड़े हो गए कि 1857 इज अगेंस्ट पॉसिबल इन इंडिया। यहीं से आप लिंक करें जलियांवाला बाग को। जिस वक्त ये गदराइट्स यहां पे काम कर रहे हैं, उस वक्त ऑलरेडी जनरल डायर यहां पे है, ऑलरेडी जनरल डायर है, और उसको भी 1857 पढ़ाया गया है, और अब वो इन गदराइट्स की मूवमेंट्स को समझ चुका है और देख चुका है। इसलिए माइंड इट अगेन। और अब फिर अभी कपिल के पास है कई चीजें कि अब चीजें बाहर निकल के आ रही हैं कि जलियांवाला बाग वाज नॉट ए स्पॉन्टेनियस इवेंट। उसके लिए पहले से ब्रिटिश के पास कहीं ना कहीं कि अगर कुछ इस तरह की बात होती है तो विल डील इट अकॉर्डिंगली। तो जलियांवाला बाग भी उसका एक इंपैक्ट है। दूसरा, भगत सिंह जैसे लोग। अब भगत सिंह जो हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि परमन उनके थे, सराभा वगैरह जो थे वो उनके भगत, जिन्होंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी हुई, भगत सिंह की फैमिली में ही कहीं ना कहीं क्रांतिकारी विचार थे शुरू से, और वो अजीत सिंह, सराभा, ये सब एक फैमिली लिंक अप थे, और भगत सिंह तो इसको सराभा को अपना मॉडल मानते थे कि ये मेरा मॉडल है, इसलिए उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा। तीसरा, कि इसने कहीं ना कहीं एक और रास्ता बताया कि वो कि भारतीय सैनिकों के द्वारा ही 1857 में भी भारतीय सैनिकों के द्वारा हुआ,
अब भी प्रयत्न किया जा रहा है भारतीय सैनिकों के द्वारा ही इनके खिलाफ, तो फिर ये हो सकता है देयरफॉर दिस लेसन इन ए वे, मैं नहीं कहता कि डायरेक्टली, बट सुभाष चंद्र बोस ने भी ये बात पकड़ी और उन्होंने भी, देखिए अब सिमिलरिटी देखिए आईएनए में और गदराइट्स में समानताएं हैं कुछ, दोनों किस, और जब ये गदराइट आए थे, या एक चीज मैं कहनी भूल गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम आए थे, एक तो उनके सामने ये था कि अंग्रेजी फौज बाहर होगी, दूसरा ये तुर्की और जर्मनी से मदद लेने की भी सोच रहे थे, तुर्की और जर्मनी से भी हम मदद लेंगे इनके अंग्रेजों के खिलाफ। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी उस तरह की, ले नहीं पाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, पर इनके दिमाग में था। अब आजाद हिंद फौज भी यही कर रही है, बाहर से लोग जो भारत से बाहर हैं वो बेसिकली पिलर्स हैं, बनाने वाले हैं। सारी जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की नेताजी ने वो भारत से बाहर ही की, चाहे रंगून में, सिंगापुर में, सारे ला। दूसरा, जो अंग्रेजों के वो ताकते हैं उनका समर्थन लेना, यही गदराइट भी कर रहे थे। तीसरा कि रिलीजन के साथ, धर्म के साथ राष्ट्रवाद का कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहां पर पंडित काशीराम भी हैं, पिंगले भी हैं, सोचन भाखना भी हैं, वहां पर भी ढिल्लो भी हैं, शाहनवाज भी है। एक मे बी अगेन कोसिनस नॉट जस्ट टू टेल कि वी आर ऑल टुगेदर, वी आर ऑल इंडियंस फर्स्ट, एनीथिंग एल्स सेकंड। तो दोनों में बहुत आपकी वो मिक्स नहीं। तो इसने एक प्रभावित ये भी किया मूवमेंट ने, एक इंडियन नेशनल आर्मी की क्रिएशन को भी। हम ये नहीं कहते कि सुभाष चंद्र बोस ने इसलिए किया कि गदराइट थे, बट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज पॉसिबल एंड कैन बी डन। इस एंगल से गदर मूवमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान भारत के अंदर, वो जो एक उनकी लीगेसी है, हम उसको इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि उनकी एक कंट्रीब्यूशन, एक कि प्योर पैशन के सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, पैट्रियोटिज्म है, उसके लिए मरना कबूल है और मारना भी कबूल है। यहां तक वर्ड यूज कर दिए कि जो हमारा ये पैट्रियोटिज्म है वो जो है भगवान की पूजा से भी ऊपर है, और स्पष्ट लिखा गया कि हमें मुल्ला पंडित नहीं चाहिए। तो आप उसको हम वर्ड ना यूज करें धर्मनिरपेक्षता वगैरह, बट उनका मतलब था कि ऑल इंडियंस आर इक्वल, और उसके इसीलिए उसमें सभी थे। जैसे मैंने कहा कि ये कहना गलत होगा कि गदर मूवमेंट वहां से पंजाब मूवमेंट, हाँ, क्योंकि पीजेंट्स वहां जो गए हुए थे वो ज्यादातर पंजाबी थे, इसलिए उन्होंने 1914 में जो क्रांति आरंभ करनी शुरू की वो ये था कि पंजाब से होगी, बट इट वाज प्राइमरली ए पर्पज उनका ये था कि अल्टीमेटली ये पूरे भारत की, और वर्ड जो यूज किया जाता था उनकी भाषा में हिंदुस्तान यूज किया जाता था, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा उर्दू से बैकग्राउंड से आए थे। तो पहली बार एक बात कांग्रेस ने अपने हिसाब से, लेकिन इस तरह की भाषा कि हिंदुस्तान एक देश है जो स्लेव्स है और वो पीसेस तक की ये बात पहुंचानी, ये उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। हम गांव में रहें, कहीं रहें, बट अल्टीमेटली वी आर ऑल हिंदुस्तान, ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं। दूसरा, वो जो माहौल बन चुका था उस वक्त देश के अंदर एक्सट्रीमिज्म का, कि मांग नहीं करनी, चाहे उसमें कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट भी शामिल हो गए, ये लोग रेवोल्यूशनरी भी आ गए, तो ये एक नया जो पहलू है भारत में, वो भी एक हम कह सकते हैं कि 2007 से कह लीजिए, 6 से कह लीजिए, 1906 से, आई एम सो सॉरी, 1906 से आजकल जो कुछ लिख रहे हैं ना वो उसी पे लिख रहे हैं तो 2000 पे लिख रहे हैं, तो जो तो 1906 से लेकर के ये सारा चलता रहा। तो ये वो पीरियड है जिसमें और उसमें इन्होंने एक वैचारिक आधार पर, ऑर्गेनाइजेशन, एक इमोशनल आधार पर, एक पैशनेट आधार पर योगदान किया। तो जो फिर भारत में अल्टीमेटली हर प्रकार की क्रांतियों के रूप में, अब सारे क्रांतिकारी भी हम जानते हैं कि एक विचारधारा के नहीं थे, लेकिन सभी का लक्ष्य, चाहे वो लेफ्टिस्ट क्रांतिकारी थे, चाहे वो दूसरे क्रांतिकारी थे, सबका मेन एम क्या था? दो, एक भारत की स्वतंत्रता, और दूसरा भारत एक ऐसे समाज के रूप में उसकी स्थापना जिसमें नैतिकता सर्वोच्च होगी, समानता सर्वोच्च होगी, भाईचारा सर्वोच्च होगा, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सभी क्रांतिकारियों के लक्ष्य थे।
तो ये एक विचारधारा जो शुरू हो चुकी थी, उसमें भी हम कह सकते हैं कि गदर का एक बहुत बड़ा योगदान था और जो आज भी लिगेसी है। इसलिए इन सब को याद करना, समझना और उनसे जो कुछ हम सीख ले सकते हैं वो करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। Thank you, Professor Narang. Speaking on the Gadar's contribution, today's seminar is centered around the revolutionary nationalism and freedom struggle in Punjab. When I was listening in the morning, Professor Kapil Kumar, Honorable Governor Arif Muhammad Khan, and now when I heard Professor Narang, one thing comes to my mind, that when we have come here to commemorate the contribution of the revolutionary nationalist, we have to think that the spirit of patriotism, the spirit of sacrifice that developed in the late 19th, early 20th century and which was continued later on. Behind this patriotic spirit, one cannot ignore the contribution of religion. And that religion, I will refer to the text, and that religion was Hinduism. One has to look at it in the context of late 19th century and early 20th century, not of the difference and debates over the years in post-independent history writing. We have to do justice when we have to look back to the contribution of this revolutionary nationalist by quoting from the facts which were written in the late 19th and early 20th century. How this mind of the youth was shaped by the ideas, by the realities of that time. And here, two important writings as a document I would like to share with you. One, which is many history people are known with and which is referred in many of the books. That was the writing of Sir John Strachey. He was a Bengal civil servant. He gave lecture in Cambridge University in 1884, mainly to the civil servants. And that lectures were compiled in the form of a book in 1888, and its revised edition, the second edition, came with new chapters in 1894. The book is available online, named India. Now, here in this book, I will just refer some of lines which is very quoted in many history books and lectures. Strachey wrote in the introduction of this book, I quote, "What is India? What does this name India really signify? The first and most essential thing to learn about India is that there is not and never was an India or even any country of India possessing
according to European ideas, any sort of unity, physical, political, social, or religious. No Indian nation, no people of India of which we hear so much. It is conceivable that national sympathies may arise in particular Indian countries, but they should ever extend to India generally, that men of the Punjab, Bengal, the northwestern provinces, and Madras should ever feel that they belong to one great Indian nation is impossible, I unquote. Now, this was written in 1888 and then revised in 1894. Now I will refer to one of Indian writer about whom many may not be knowing. He was not so popular. His name was Nandalal De. He was a Bengali civil servant, and he published his book in 1902, and the title of the book, Civilization in Ancient India. Many of his writing, dictionary of geography of India, ancient and medieval India, is still available and very popular, and which I consider the Nandalal De's rejoinder to the thinking of the British is in the form of this book. He wrote, India is one of the earliest civilized countries in the world, and its excellence was visible in the fields of arts, science, literature, philosophy, religion, manners, and customs, unquote. So, just see, when the Britishers were trying to project that there was no such territory, no such civilization, no country as such in the name of India, but that consciousness was very much, those who are getting the Western education themselves were prepared to reject this notion created by the Western intelligentsia, and the writing started coming. He was one of them, there were many others. The point that comes, which is very important, with which I started, that one has to connect between the notion of Hinduism prevalent in the late 19th and 20th century, which was the guiding spirit of the nationalists of many parts of India, whether it is Bengal, whether it is Punjab, whether it is Maharashtra. Why? I will cite the example from the writings of a personal assistant to the director of British intelligence, titled a book, The Political Trouble in India, 1907 to 1917. The reference which Professor Narang gave of V.D. Savarkar's celebration of 50 years of first Indian independence movement, that was the context, and from there till 1917, he gave the details of the happening which is taking place and making the people rebellious against the British government. I will only quote from that to show that what we are hesitant to take note of, how the minds of the revolutionaries were shaped by the notion of Hindu civilization and Hindu past. It's a different question altogether to debate on a later point, but how this mind was shaped. Arif Muhammad Khan gave reference to Swami Vivekananda, gave reference to Ramakrishna Paramahansa, give reference to also Tagore's writing, who defined nationalism in a different way and was critical of thinking of nationalism. But I would come here to quote from the writings of this British official whose name was Campbell. He wrote, religion is an element in nationality
during Vedic times, India was a self-contained country. It was united as a great nation. That unity has disappeared, bringing great degradation, and it becomes the duty of the leaders to revive the union. This is the idea he is reporting in the mind of the Indian revolutionaries. This book first published in 1917, and this is also available online. He referred the revolutionaries as anarchists, and he wrote, the anarchists believed, I quote, Indian civilization in all its branches, religion, education, art, industry, home life, and government is healthy, spiritual, beautiful, and good. It has become corrupted in the course of centuries, but that is largely the result of the cruelty and aggression of the Mohammedans in former times and now of the British. The Indian patriot must toil to restore Indian life and civilization. I am not giving any interpretation. What I am referring to, he is trying to reflect the mindset, the thinking of the people who are taking part in revolutionary movement. They consider at the time that the decadence and the decline of India today was first because of the Muslim invasion and subsequently of the British repression. And then he gives reference that he writes, Shri Krishna's advice to Arjuna is constantly quoted in the revolutionary books and newspapers, and a picture of the scene before the battle with Arjuna in his chariot and the god holding the reins beside him adorned the front page of Aurobindo Ghosh's paper, The Karma Yogin. The motto printed on the front page of the Jugantar was also taken from the Gita and reads as follows. When righteousness decays, O son of Bharat, and unrighteousness flourishes, then I manifest myself for the protection of the good, for the destruction of evildoers, for the establishment of righteousness. I am reborn from age to age, unquote. Then he refers to Bankim Chandra's Ananda Math, and referring to that, he writes that the historical novel in the background of Sannyasi rebellion in Bengal in 1770s provided the needed rationale for procuring arms and collecting money through dacoity for the cause of liberation. Many nationalists went to the gallows singing the poem in Anandamath, and this later becomes the national song Bande Matram. This is one. Second reference he gives that there is a young lady, I quote, name was Kumudini Mitter. She was related to Aurobindo Ghosh's extended family. She wrote a book in 1905. In Bengali, it is Shikher Bolidan, the sacrifice of the Sikhs, giving reference to the sacrifice made by the Sikhs during the oppressive Muslim rule. The book narrates Guru Tegh Bahadur's firmness before the Mughal Emperor Aurangzeb and his consequent imprisonment and execution. This example was cited to be followed by the youth of Bengal. And the last quotation is regarding the sacrifice made by revolutionary youth in Tamil Nadu. In 1911, Mr. Acid, the district magistrate of Tinnevelly district, was shot dead by Vanchi Iyer, a young Tamil Brahmin who committed suicide a few minutes later. On the body of Vanchi Iyer, a letter written in Tamil language was found which states that the Mlechos of England, having captured our country, trade underfoot the Sanatan Dharma of the Hindus and destroy it.
every Indian is trying to drive out the English and restore Swarajya and the Sanatan Dharma. Our Rama, Shivaji, Krishna, Guru Govind and Arjun ruled over land, protecting all religions, but how they are preparing to crown in the land George V, a mlecho, who eats the flesh of cows. 3,000 madrasis have taken a vow to kill George V as soon as he lands in our country, to make known our intention to others. I, who am the least in this company, have done this deed, this duty. Every man in Hindustan should consider this his duty, unquote. So, the narratives that we find from the writings of Campbell and what I have referred in the beginning, that we have to understand the thinking, we have to understand the spirit behind the sacrifice of the revolutionaries in the context what was happening. When we talk of Bankim's writing and castigating it in terms of fomenting communalism and communal spirit, when we refer to the writings of many of the revolutionaries in the same yardstick, the question naturally comes, we are not reading the historical events in a particular historical context, we are projecting it in our today's context and in our today's thought. But we have to keep in mind that the spirit of sacrifice, the spirit of patriotism and what we call the revolutionary nationalism was born in a particular context when the age-old civilization, the richness and the treasure of Bharat, India, which was referring to by Arif Muhammad Khan in the morning, was lost because of the repressive rule of the foreigners. That spirit came and the objective was how to get back the lost glory, the lost past. So when we talk, when we discuss of revolutionary nationalism, we cannot ignore, we cannot close our eyes to the spirit of Hinduism which influenced particularly the cult of Shakti. The Aurobindo Ghosh's famous pamphlet, the Bhavani Mandir, that Bhavani Mandir, the Bhavani is nothing but the Mother India, the power, and which comes from his spiritual journey, his spiritual thought. And that is being also based on the ancient culture, the reading of Upanishads and Vedic text. So that spirit was the spirit behind the patriotic spirit of the revolutionary nationalists. When we celebrate, when we try to remember their contribution, we have to understand that this land was considered as the motherland, and the sacrifice they made is to protect the honor of the mother. Thank you. Thank you so much, Dr. Narang and Dr. Swaraj Basuji, for speaking and chairing this session very so beautifully and enlightening us on so many aspects and small nuggets and details. Thank you so much, Dr. Narang, for bringing us so much perspective on the Ghadar movement. So many anecdotes जो कहते हैं ना अछूते प्रसंग थे वो आपने बताए. And Dr. Swaraj Basu, because in the Bengal perspective, how Punjab was dovetailed so beautifully, and that shows the whole spirit of integration. कोई आज का कोई वो नया वो कोई it's not a catchphrase. It has always been there in our consciousness. It goes on the back burner. With so many, with myriad problems that we face as such a large and diverse country. But every time something happens to the motherland, as Professor Basu said, all of us do rise up
in arms, and we will always do that. Thank you so much. I thank you once again. And I invite now for the second session for this seminar, for which the topic is Krantikari Punjab, the Unsung Revolutionaries. And the session will be chaired by Professor Dilbag Singh Ji, very eminent professor. Sir, kindly do come on the stage. And the speaker for this session is, Dr. Dilbag Singh Ji is here? Sir, aap padhariye, sir. Aaiye, sir. हाँ जी, please. जी सर, नहीं इसको करा के कर लेते, हमने इन्फॉर्म कर दिया, नहीं कैंटीन इन्फॉर्म कर दिया, नाउ हम सर 2:30, तो नो प्रॉब्लम सर, कर लेते हैं सर. We were just a little behind schedule, but we've because there'll be lunch after the second session, and then we'll have the third session. All of you do join us for lunch here. Coming back to the organization of the second, and we have with us the very eminent, very renowned, in the chair for this session, Professor Dilbag Singh Ji. Sir, I welcome you to this program of Mera Rang De Basanti Chola. And the speaker for this session is Janab Saqib Salim Saab, who's, so we'll introduce Dilbag Singh Ji, who needs no introduction, but for those of you who do not come from the academic or historical background, former professor, Center for Historical Studies, JNU, New Delhi. He's a renowned history person. You'll see him often on television and channels like that, and his articles are abundant in the journals. He's an institution in himself as far as the historical perspective is concerned. The speaker, Salim Saab, is a well-known name in public history writing, with more than 500 publications to his credit. And these articles are in top-notch magazines, many on online portals, many on overseas portals. And he does us proud because he's a young academician who is the best combination of academia and public history writing. So it's a rare, rare combination. We need more voices, more awaaz like Salim Saab, and he does write for awaaz voice, yes. And under Ministry of Culture, he has done many research projects. He has been commissioned by the Ministry of Culture to do them. And many museums of the country which have been built, many of them in association with the legendary historian Professor Kapil Kumarji, and many of the museums in there are four museums, right, Saqib Saab, in the Red Fort, on which he has worked, and the National Library as well, and IFFI. He has also worked on the Jallianwala Bagh Museum with Professor Kapil Kumarji. He spreads awareness about Indian history through social media. Very, very active voice on Twitter. I do follow him on Twitter, so I can tell you that. And on all the audiovisual mediums, he's very tech savvy. If he had his way, he would actually come out and start a portal which is totally dedicated to unearthing unknown freedom fighters and unheard voices who are living amongst us today. That is the level of his commitment towards our history and our freedom movement. Welcome, Professor Dilbag Singh Ji. Welcome, Saqib Salim Saab. Yesterday was the 7th of May, and it was the birthday of Gurudev Rabindranath Tagore. And we are talking about, the session here now is Krantikari Punjab, the Unsung Revolutionaries. That's the topic. So when on 13th April 1919 the Jallianwala Bagh massacre happened, Tagore relinquished his knighthood.
So today on the 8th, let's pay tribute to all the martyrs of Punjab, not only on the Jallianwala, there are many such episodes which you historians would enlighten us about, and to the spirit of Gurudev Rabindranath Thakur for understanding the pain of the Jallianwala Bagh massacre. जैसा मैंने कहा था इनॉग्रल सभा में, that मुझे हमेशा ऐसा लगता है, and correct me if I'm wrong, ये ऐसा वाक़या है जिस पर इतिहास कोई मरहम नहीं लगा सकती. इतिहास में इसलिए कहती हूँ कि हम सब उस इतिहास का एक हिस्सा है. I hand it over now to Saqib Saab to start the topic, Krantikari Punjab, the unsung revolutionaries. He will speak for about 25 minutes or so, following which we'll have the expert comments of the chair by Professor Dilbag Singh sir for about 10 minutes or so, and then we'll break for lunch, in which all of you present in the auditorium and all our eminent guests will also join us for lunch. Thank you so much. We shall continue the third session of the seminar after that. Thank you. शुक्रिया कुमुद दीवान जी. ऑनरेबल चेयरपर्सन की इजाज़त से मैं शुरू करना चाहूँगा अभी का सेशन. आप लोगों ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी कि मुझे यहाँ पर बुलाया. मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि पंजाब के जो कम जाने गए, मतलब लेसर नोन रेवोल्यूशनरीज या फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम उनकी बात करेंगे. कुछ नाम एकदम से जहन में आते हैं, कुछ नाम जहन में नहीं आते हैं और कुछ नाम कहीं भी नहीं होते हैं. शुरुआत में एक शेर से करना चाहूँगा. हम आज देने बैठे हैं तरतीब दफ्तर को, वक्त जब उसके उड़ा ले गई हवा एक एक. वक्त बहुत गुजर चुका है, आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और 75 साल में अगर किसी का नाम अब तक ना लिखा गया हो तो उसे वापस ला पाना बड़ा मुश्किल है. आमतौर पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है. सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा. हम सब हिस्टोरियंस हैं, यहाँ पर बहुत ही मोतबर हिस्टोरियंस बैठे हैं मेरे सामने और चेयर पर भी हैं. आमतौर पर ये इल्ज़ाम लगता है कि हिस्ट्री लिखने वाले, इतिहास लिखने वाले जानबूझकर कुछ नामों को छोड़ देते हैं. जानबूझकर कुछ नाम छोड़ दिए जाते हैं, कुछ नाम जोड़ दिए जाते हैं हमारे इतिहास में. ये जो इल्ज़ाम है ये पूरे तौर पर बेबुनियाद भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बुनियाद भी इसकी कोई नहीं है. असल में है ऐसा कि हिस्ट्री राइटिंग, बहुत से लोगों को लगता है सिर्फ कहीं से लिखना है, कहानी लिख देनी है. ऐसा नहीं है. जैसे साइंस होती है, आपको एक एविडेंस चाहिए होता है, उस एविडेंस की बिना पर आप कुछ लिखते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं. ऐसे ही हिस्ट्री में आपको पहले एक एविडेंस चाहिए होता है, उस एविडेंस को वेरीफाई भी करना होता है. मान लीजिए एक मिसाल के तौर पर, यहाँ पर मुझसे बहुत सीनियर लोग बैठे हैं लेकिन तब भी मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके सामने किसी की एक लिखा हुआ आपको ख़त मिलता है, किसी नेता ने लिखा था, उसने लिखा कि इस दिन मेरे साथ ये हुआ. तो हमें एक बार वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि सच में हुआ था, उस दिन के बाकी अखबारात क्या कहते हैं. ज़रूरी नहीं है कि उसने, कुछ लोग अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर भी लिख देते हैं, कुछ लोग कई बार सरकार के डर से कुछ बातें नहीं लिख रहे होते हैं. यह है इस बारे में कि सबसे पहले कुछ एविडेंस नहीं होते हैं जो धीरे धीरे हमारे सामने आते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा है, अजनाला का मैसेकर. अजनाला एक जगह है अमृतसर के पास है, वहां पर कुछ कंकाल मिले. कंकाल पहले से कुछ हिस्ट्री किताबों में थोड़ा बहुत था, फिर कंकाल कुछ साल पहले मिले, अब उसका डीएनए हुआ तो उसकी डेटिंग हुई, किस जगह के लोग थे ये पता चला. कई सैकड़ों जो हिंदुस्तानी थे उन्हें वहां पर कत्ल किया गया था 1857 में. तो ये अगर हम ये कहें कि 1960 के हिस्टोरियन ने इतना क्यों नहीं लिखा जितना 2020 के ने लिखा, तो उसकी वजह एविडेंस की कमी हो सकती है. लेकिन उसके बावजूद कुछ हिस्टोरियंस ऐसे रहे हैं या हैं, आज भी हैं, हमारे बीच भी हैं, जो कि इस वजह से कुछ नाम छोड़ देते हैं, कुछ इंसिडेंट छोड़ देते हैं, कुछ एविडेंसेस छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें शायद नौकरी करनी है या जो उन्हें फंड कर रहा है उसे नाराज नहीं किया जा सकता. कई बार ऐसा नहीं है कि वो उनकी तारीफ ही करें, कई बार बस वो बुराई से बच जाते हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी रही है. लेकिन इन सब के बीच ऐसा नहीं है कि पूरे तौर पर
कभी नाम ना लिया गया हो। इधर उधर लिटरेचर में आप अगर थोड़ा खोदेंगे तो कहीं खत में, कहीं किसी और किताब में आपको वो किस्से कहानियां सुनने को मिलते हैं जिनसे कि हम ये नैरेटिव्स, ये कहानियां वापस बिल्ड कर सकते हैं। आमतौर पर जब पंजाब की बात आती है, गलत भी नहीं है, लेकिन भगत सिंह का नाम एकदम से जहन में आता है। दूसरा नाम जलियांवाला बाग का आता है। गलत नहीं है कि इनका नाम लिया जाए, लेकिन इसके आगे कितने नाम याद आते हैं? इसके आगे अगर थोड़ा बहुत अगर हम बढ़ने की कोशिश करते भी हैं तो हमें गदर पार्टी का नाम याद आ जाता है। बहुत मुश्किल करेंगे तो उधम सिंह का नाम याद आ जाता है। यहां तक कि अगर आप फिल्मों की बात करें तो इससे आगे वो भी नहीं बढ़ी हैं। यहां तक कि करतार सिंह सराभा, जिनके ऊपर भगत सिंह ने अपनी जिंदगी मॉडल करी, जिन्होंने के लगभग 18-19 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया, गदर पार्टी के थे, गदर पार्टी की शुरुआत के लोगों में थे, तो उनका भी नाम हिस्ट्री की किताबों में एज सच नहीं पाया जाता है। इसकी क्या वजह है, ये हमें जानना होगा और ये हमें पता होना चाहिए। कुछ केसेस में एविडेंस नहीं था, मान लिया, कुछ केसेस में जानबूझकर वो नाम पीछे रख दिए गए हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें, मैं ज्यादा पीछे से नहीं करूंगा, मैं बात शुरू करूंगा 1857 से। सबसे पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पंजाब, आज का जो हिंदुस्तान में पंजाब दिखाई दे रहा है, अगर हम अंग्रेजों के वक्त के पंजाब की बात करें तो वो उससे बड़ा है। उसमें आज का हिमाचल प्रदेश है, उसमें हरियाणा है, उसमें पाकिस्तान का पंजाब है, और अभी जो पंजाब आप नाम सुन रहे हैं वो पंजाब तो है ही। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1857 से ही मैं बात करता हूं, 10 मई 1857, 10 मई आने वाली है 2 दिन बाद, मेरठ छावनी से गदर यानी कि हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने आवाज उठाई, हथियार उठाए और क्रांति शुरू की। लेकिन उससे पहले, जो कि आमतौर पर किताबों में बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं होता, इक्का दुक्का कहीं एक लाइन में लिख दिया है, छोड़ दिया है, अंबाला जो कि उस जमाने के पंजाब का एक बड़ी छावनी थी, बल्कि सबसे बड़ी छावनी थी, वहां पर कई दिन पहले से रोजाना कभी कहीं आगजनी की खबर आती थी, कभी कहीं से आगजनी की खबर आती थी। ये वहां से शुरू हो चुका था। उसके बाद अजनाला का जो किस्सा मैंने अभी बताया, जहां पे के 250 से ज्यादा, मतलब शायद 300 से ज्यादा लोगों को मारकर एक कुएं में फेंक दिया गया, वो 30 जुलाई 1857 का किस्सा है। इसके अलावा अगर आप और देखें, आमतौर पर आप देखेंगे कि हिस्ट्री बुक्स में ऐसा शो किया गया है कि 1857 कोई चीज है जो दिल्ली में हुई, मेरठ में हुई, लखनऊ में हुई, कानपुर में, थोड़ा बहुत आरा बिहार में हो गई, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। और पंजाब को तो एक तरीके से विलेन बना दिया गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और इतिहास के अंदर जाएं, प्रोफेसर कपिल कुमार ने ही 1857 पर एक अभी म्यूजियम किया है, उसमें लाल किले में, आप उसी के अंदर जाएं तो आपको पता चलेगा कि जो सिख सिपाही थे जो दिल्ली में थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर को यह अर्जी दी थी कि हमें एक रेजिमेंट बना दिया जाए ताकि हम यूनिटी से अंग्रेजों का मुकाबला कर सकें। लेकिन उनके बारे में कहीं बात नहीं होती है। पंजाब के ये सारे नाम कहां गए? उसके अलावा आमतौर पे देखा जाता है, जब भी हिस्ट्री लिखी गई है तो पंजाब की 1857 की, अभी मैं बात कर रहा हूं, 1857 की हिस्ट्री राजे और जमींदारों के साथ लिख दी गई है कि ये राजा इसके साथ था, वो राजा इसके साथ था। इसकी कोई बात नहीं करता है कि आम जनता किसके साथ थी, क्या आम जनता उनके साथ थी। यह खास बात है कि पंजाब एक ऐसी जगह है जहां की आम जनता लगभग पूरे तौर पर क्रांतिकारियों के साथ थी, और फकीर, मौलवी, सन्यासी, धर्मगुरु, आप जो भी कहें, वो सब लोग ज्यादातर क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे। 1857 की बात है। कुल्लू के एक प्रताप सिंह थे तो वो राजघराने से ही, लेकिन वो भी फकीर हो गए थे 1840 के आसपास। उन्होंने सन्यास ले लिया था, वो मतलब चले ही गए थे, लोगों को लगा कि पता नहीं कहाँ है, वो वापस आए तो पता चला कि वो एक फकीर बन गए हैं। 1857 में उन्होंने बाकायदा लोगों को इकट्ठा किया, अंग्रेजों पर हमले किए, उनको और उनके साथियों को फांसियां हुई। लुधियाना में बाकायदा एक फकीर का हमें किस्सा मिलता है, नाम ज्यादा नहीं हमें, मतलब जैसे मैंने कहा कि नाम मिटा दिए गए या खो गए हैं, लेकिन उन्होंने वहां पे सफदरजंग नाम के एक बहुत ही जिसे कहते हैं जमींदार टाइप का इंसान था, उसे तैयार किया और उसके साथ लुधियाना के आम लोगों ने बगावत कर दी। इन लोगों को भी सजा हुई। सफदरजंग को खुद सजा नहीं हुई, सफदरजंग दिल्ली अपनी फौज लेकर आ रहा था, रास्ते में
मारा गया, नेचुरल डेथ थी वो। लेकिन ये सारी चीजें अगर आप उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि 1857, जिसमें कि पंजाब को आप, उसका नाम तो होना बहुत बड़ी बात है, उसे एक तरीके से विलेन बना दिया गया, उसमें भी अपने आप पंजाब का एक रोल है। वो रोल कहां गया, ये किस वजह से गया, क्या एविडेंस की कमी थी? नहीं, ये एविडेंस की कमी नहीं थी, क्योंकि जो नाम मैंने आपको बताए हैं ये अंग्रेज अफसरों ने अपनी डायरियों में लिखे हैं, तो ये एविडेंस की कमी तो नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जो डायरी उसी जमाने से वो डायरी लाइब्रेरीज में मौजूद है, वो कोई डीक्लासिफिकेशन का मुद्दा नहीं है। इसके बाद हम आते हैं उस चीज पर जिसकी मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले, जैसा कि अभी बात की थी हमारे पिछले स्पीकर ने, कि पंजाब में गदर पार्टी से पहले 1907 के आसपास से एजिटेशन शुरू हो गए थे। कनाल कॉलोनी एजिटेशन कहते हैं। बेसिकली मुद्दा था नहरों के पानी को लेकर, और किस तरीके से एक चीज होती है, एक वर्ड होता है चक्रोड, मतलब किस तरीके से खेत काटा जाएगा, उसकी बाउंड्रीज कैसे डिफाइन होंगी, इस पर किसानों का इलाका था। और वहां पर इस पूरी एजिटेशन को जिन लोगों ने लीड किया उनमें दो नाम बहुत अहम हैं, एक लाला लाजपत राय का और एक सरदार अजीत सिंह का। लाला लाजपत राय के बारे में भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना उस आदमी का नाम लिया जाना चाहिए हिस्ट्री की किताबों में, उतना नहीं लिया गया। ले देकर आप फिल्में देखिए, कहानियां पढ़िए, सीरियल देखिए, वेब सीरीज देखिए, जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये है कि भगत सिंह थे, उन्होंने उनकी मौत का बदला लिया था। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक यकीन की बात बता रहा हूं, उर्दू लिटरेचर अगर आप उठा के देखें, ठीक है, उर्दू लिटरेचर में सबसे ज्यादा उस दौर में कविता अगर किसी की शान में लिखी गई हैं तो वो लाला लाजपत राय की शान में लिखी गई हैं। और जब उनका इंतकाल हुआ तो लोगों ने उनकी शहादत पर इतनी पोयम्स लिखी हैं, अनगिनत पोयम्स हैं, मतलब मैं 100-200 पोयम ऐसे ही ढूंढ के दे सकता हूं। ये लाला लाजपत राय का कद था। और आज के वक्त में लाला लाजपत राय के बारे में लोगों को कम पता है। लाला लाजपत राय को मांडले जेल भेजा गया क्योंकि उन्होंने लोगों को, किसानों को एक जगह इकट्ठा किया था। उसके बाद अजीत सिंह थे, अजीत सिंह ने भी लोगों को इकट्ठा किया था, उन्हें भी देश निकाला दिया गया था। यहां पे यह भी बताना जरूरी है कि अजीत सिंह उसी भगत सिंह के चाचा थे। यहां पर अजीत सिंह के बारे में मैं थोड़ी और बातें बताना चाहूंगा। मुद्दा यह है कि चलिए कलाम कलानी तक फिर भी लोगों को पता होता है, क्योंकि किसी फिल्म में नहीं, 1965 की शहीद में यह चीज दिखा दी गई थी। यह भी मैं बताना चाहूंगा कि 1965 की जो फिल्म शहीद थी, बहुत कम लोगों को पता होगा कि उसके राइटर खुद बटुकेश्वर दत्त थे, जिन्होंने असेंबली हॉल में बम फेंका था। तो इसलिए उसे काफी ऑथेंटिक हम सोर्स मान सकते हैं हिस्ट्री का। खैर, वो एक अलग मसला। अजीत सिंह के बारे में जो बाकी लोगों को कम पता है कि 1907 के बाद जब उन्हें कंट्री से निकाल दिया गया तो 1909 तक वो ईरान पहुंचे। ईरान में वो और सूफी अंबा परिषद पहुंचे। कुछ जगह उनका नाम परिषद लिखा है, कुछ जगह प्रसाद लिखा है। तो वो वहां पहुंचे और उसके बाद उन्होंने दौरा शुरू किया। वो ब्राजील गए, वो अर्जेंटीना गए, वो पूरे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, हर मुल्क में गए। और अजीत सिंह ने वहां पर लोगों को इस चीज के लिए इकट्ठा किया, बाकायदा हिंदुस्तान से लोगों को बुलाया। कुछ जगह पे पता चलता है कि जोत सिंह, जो कि ब्राजील में एक्टिव थे, उन्हें अजीत सिंह ने बुलाया था। या फिर हरदयाल को लेकर भी जो फाइनल फेलोशिप का तरीका था वो अजीत सिंह का था। यहां पे ये जानना जरूरी है लाला हरदयाल के अलावा अजीत सिंह के बारे में कि इन्होंने कुछ नई चीजें करी थी। उस जमाने में कुछ फेलोशिप्स फ्लोट की गई थी कि हिंदुस्तान से लोग वहां पर जा सकें, ठीक है। यही गदर पार्टी की शुरुआत है। अगर गदर पार्टी की आप शुरुआत देखें कि लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कैसे आ रहे हैं, तो हो ये रहा है कि बाहर फेलोशिप्स भी ऑफर की जा रही हैं और बाहर लोगों को बुलाया जा रहा है, उनके साथ एक तरीके का उनकी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। इस सब के पीछे अजीत सिंह हैं। इन अजीत सिंह का नाम कितने लोगों को पता है? लाला लाजपत राय का तो चलिए फिर भी पता है, इन अजीत सिंह का नाम कितने लोगों को पता है? और कितने लोगों को पता है कि ये भगत सिंह के चाचा होने के अलावा इनका क्या रोल है? इनका बड़ा रोल है। और उसके अलावा फिर एक और नाम है किशन सिंह, भगत सिंह के फादर। भगत सिंह के फादर होने के अलावा उनका अपना रोल ये है, अलग अलग डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि जब गदर पार्टी बनी और 1915-14 में लोग आना शुरू हुए तो उन्हें एक तरीके से फंड करना, उनके रहने खाने का इंतजाम करना, इसमें किशन सिंह का भी रोल था।
ये काफ़ी मतलब प्रोमिनेंट चीज़ है। और इसी वजह से करतार सिंह सराभा का एक असर या फिर पूरी गदर पार्टी का असर भगत सिंह की पूरी लाइफ पर है, जो कि हमें देखने को मिलता है, चाचा का और फादर का जो रोल है उन पर। इसके अलावा अगर बहुत कम लोगों को पता होगा कि 1909 में ही ये रॉलेट एक्ट जब बनाया गया, तो रॉलेट रिपोर्ट में उन्होंने अंग्रेजों ने लिखी जो वजह कि हम कानून क्यों बना रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ नाम लिखे थे। ठीक है, मैं यही कह रहा हूं कि हिस्टोरियन ये नहीं कह सकते कि एविडेंस नहीं था, क्योंकि रॉलेट रिपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें नाम किसके थे? लालचंद फलक और भाई परमानंद के, जिन्हें के बम बनाने के जुर्म में पकड़ा गया था। उनके पास से कुछ बुकलेट बरामद हुई थी कि बम बना रहे थे, 1909 की बात है। भाई परमानंद के बारे में सब जानते हैं, बाद में लालाचंद फलक के बारे में इतना नहीं जानते हैं, लेकिन ये लोग पकड़े गए, इन्हें जेल में डाला गया। बाकायदा रोलेट एक्ट बनाते टाइम जिनकी वजह दी गई वो नाम ये थे। रोलेट एक्ट रिपोर्ट में एक और पंजाब से नाम लिया गया, जफर अली खान, जमींदार करके एक अखबार आता था, उसके एडिटर होते थे। इनके जो अखबार था, इनकी लिखी हुई चीजें थी, ज्यादातर बैन हो जाती थी। इनके अखबार ने जिस तरीके से खुद भगत सिंह की भी जो रिपोर्टिंग बाद में हुई वो इनके अखबार ने की। जफर अली खान को एक बहुत बड़ी थ्रेट माना गया है। ठीक है, इसके अलावा रास बिहारी बोस नाम लिया गया, पंजाब के नहीं थे, लेकिन जिसे हम कहते हैं कर्मभूमि पंजाब थी। ये पंजाब पहुंचे, इन्होंने पंजाब में लोगों को रिक्रूट किया, पंजाब के लोगों को साथ लिया। ये हार्डिंग वाले बम केस के बाद यहां से गए। इन्होंने जो वहां पर लोगों को इकट्ठा किया, उन लोगों को लेकर बाद में खैर नहीं उतना सफल हो पाया गदर पार्टी का पूरा जो प्लान ये था कि 21 फरवरी 1915 को हिंदुस्तान की आर्मी में जितने भी हिंदुस्तानी सिपाही हैं अंग्रेजों की आर्मी में, वो सब एक साथ बगावत कर देंगे। लेकिन ये प्लान, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने भी अभी कहा था, कपिल साहब ने, कि कुछ गद्दार थे, उन्होंने पहले ही प्लान लीक आउट कर दिया और वो प्लान जो है लीक आउट हुआ और लोगों की धरपकड़ शुरू हो गई। सैकड़ों लोगों को पकड़ा गया, बहुत लोगों को फांसियां हुई और रास बिहारी बोस निकलकर जापान चले गए। जो केस चला उसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। नाम लेते लेते हम थक जाएंगे। सैकड़ों लोगों को फांसी हुई है, 29 लोगों को एक ट्रिब्यूनल के तहत फांसी हुई है, कुछ दर्जन लोगों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तहत फांसी हुई है, कुछ दर्जन लोगों को कोर्ट मार्शल के थ्रू गोली मार दी गई है। ठीक है, इसके बाद एक और नाम जो आपको रोलेट एक्ट रिपोर्ट में मिलेगा, 3 पन्ने हैं उस आदमी पर, सियालकोट का है ये आदमी, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी। इस आदमी का नाम क्यों आता है? मौलाना उबैदुल्ला सिंधी एक आदमी था जिसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीआईडी रिपोर्ट ने यह लिखा है कि यह अनुशीलन समिति जो कि बंगाल में ऑलरेडी वर्क कर रही है, उसका मॉडल बना दिया गया है और दिल्ली से वर्क कर रही है। दूसरी बात, यह आदमी अफगानिस्तान जाता है, अफगानिस्तान में एक भारत की सरकार बनती है, आजाद हिंद सरकार, जिस तरीके से बाद में सुभाष चंद्र बोस के वक्त में भी बनी, जिसके के प्रेसिडेंट जो थे वो राजा महेंद्र प्रताप थे जो हाथरस के थे, यूपी के थे, बरकतुल्ला थे जो भोपाल के थे, और ये उबैदुल्ला सिंधी थे। उबैदुल्ला सिंधी हिंदुस्तान से गए थे, बरकतुल्ला गदर पार्टी के थे, उधर से आए थे, यूएसए की तरफ से आए थे, और राजा महेंद्र इंडिया से जाकर जर्मनी में जाकर जर्मनी का खत लेकर वापस इंडिया दाखिल हुए थे। तीनों अफगानिस्तान दाखिल हुए थे, तीनों लोग एक साथ आए थे। लेकिन रोलेट एक्ट बनाते हुए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई वो इस आदमी को इसलिए दी गई क्योंकि जो प्लान था इस सरकार को बनाने का, ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूं, वो ये था कि एक सरकार, जैसे हम बाद में आजाद हिंद के टाइम भी देख रहे हैं अगली वर्ल्ड वॉर में, कि पूरी एक आर्मी बनाई जाएगी जिससे इंडिया को इन्वेड किया जाएगा और अंग्रेजों की फौज से आजाद करा लिया जाएगा। अलग अलग कंट्रीज में नुमाइंदे भेजे गए थे, कई कंट्रीज ने इन्हें यह खत भी दिया था कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी सरकार को मानते हैं। उसके बाद अगर हम उबैदुल्ला सिंधी के बाद बात करें, और उबैदुल्ला सिंधी के बारे में एक और बहुत ही रोचक जानकारी वो ये है कि उबैदुल्ला सिंधी उसके बाद हिंदुस्तान के बाहर ही रहते रहे, चाइना गए, कभी अलग अलग कंट्रीज में गए और फिर बहुत दिन तक अरब में रहे, और उसके बाद 1939 में जब वो वापस आए तो 1939 में वापस आने के बाद उनकी मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से हुई। सुभाष चंद्र बोस ने पब्लिकली कुछ लोगों के सामने ये कहा कि ये आदमी जो है, जितना इसने
अपनी जिंदगी में परेशानियां झेली हैं देश के लिए, ये आदमी अभी तक जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। लोग ऐसे में मर जाया करते हैं। तो खैर ये बातें मैं ये बता रहा हूं कि ये नाम पंजाब के हमने नहीं सुने हैं। एक और नाम पंजाब का बहुत कम जगह गलती से इधर उधर आ जाता है, शायद किसी ने सुना हो, दुर्गा भाभी, दुर्गावती देवी। दुर्गावती देवी ने जब रेवोल्यूशनरीज कुछ भी करते थे तो उन्हें छुपाना, उन तक खाना पहुंचाना, प्लान्स को, क्योंकि ये होता है, आज भी होता है कि पुलिस औरतों की चेकिंग जरा देर से करेगी, तो इस तरीके से इन्होंने एक बड़ा रोल किया। सॉन्डर्स के कत्ल के बाद जब रेवोल्यूशनरीज, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे, ये लोग वहां से निकले, तो उन्हें उनकी जो मदद की थी भागने में, छुपने में, उस सब में भी दुर्गावती देवी का अपना नाम है। उसके बाद एक नाम आता है भगवती चरण वोहरा। यह नाम तो और भी कम सुना जाता है। भगवती चरण वोहरा अगर अपने मंसूबे में कामयाब होते तो शायद भारत का इतिहास थोड़ा अलग होता। हुआ यह था कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु पर केस चल रहा था, केस कोर्ट में था, और भगवती चरण वोहरा के बारे में यह है कि भगवती चरण वोहरा को ने एक ये प्लान इन लोगों का था कि इन्हें आजाद कराया जाएगा। बम ट्राई करते हुए बम फट गया, मौत हो गई, शहादत इन्हें ऐसे मिली। और यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि भगवती चरण वोहरा का ये प्लान भले ही सक्सेसफुल नहीं हुआ, और इसके बाद इस तरीके के हालात भी पैदा कर दिए गए कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का जो ट्रायल है वो एक ऐसा अजीब ट्रायल है जिसमें कि जो मुलजिम थे, यानी कि जो हमारे भगत सिंह थे, इन लोगों को कोर्ट में आने ही नहीं दिया गया। हालात ऐसे पैदा कर दिए गए थे, ना कोर्ट में मुलजिम था, ना वकील था, ना कुछ और था। एक और नाम जो कि हम लोगों को याद होता है, सब कुछ याद होता है, हमें जलियांवाला याद है, लेकिन जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा क्यों थे ये हम भूल जाते हैं। एक इंसान थे सैफुद्दीन किचलू, एक इंसान थे सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू के बारे में वीएन दत्ता ने ये लिखा है अपनी किताब में। उन्होंने ये लिखा है कि जब उन्होंने लोगों से बात की, उनका फील्ड वर्क था, हिस्टोरियन थे, तो उन्होंने ये लिखा है कि मुझसे लोगों ने ये कहा कि लोग गांधी का नाम लेते हैं, किचलू को लोग भूल गए हैं, जबकि हमारा हीरो तो किचलू था अमृतसर का। ये उन्होंने मतलब कोट किया है, नॉट माय वर्ड्स, ठीक है। तो सैफुद्दीन किचलू जो थे वो इंसान था जिसको लेकर ये सारी चीजें सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के अराउंड हो रही थी। सैफुद्दीन किचलू बाद में बहुत दिन तक रहे, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी, पार्टीशन के खिलाफ भी इन्होंने बहुत कैंपेन करी, लेकिन हम लोगों ने उन्हें भुला दिया है। सैफुद्दीन किचलू के बाद एक और नाम जो कि मैं लेना चाहूँगा, बहुत कम लोगों को याद होता है, हरिकिशन तलवार। हरिकिशन तलवार के एक भाई का नाम सबको याद होता है, भगत राम तलवार का, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ वो थे, नाम जुड़ता है, लेकिन हरिकिशन तलवार का नाम लोगों को याद नहीं होता है। ये पूरी की पूरी फैमिली खान अब्दुल गफ्फार खान की पार्टी से रिलेटेड थी, और हरिकिशन तलवार ने उस जमाने का जो गवर्नर था पंजाब का, मोंटमोरेंसी, उस पर गोली चलाई थी 23 दिसंबर 1930 के दिन। उस पर गोली चलाई थी, गोली बच गई थी क्योंकि राधा कृष्णन वहां पे मौजूद थे, वो सामने आ गए थे और इन्होंने कहा कि मैं राधा कृष्णन की इज्जत करता हूं, मैं गोली नहीं चला सकता था, लेकिन तब भी इन्होंने 6 की 6 गोली चलाई थी। और हरिकिशन तलवार से, क्योंकि गवर्नर तो नहीं मरे थे, लेकिन इन्हें फांसी की सजा हुई थी। और मजेदार चीज ये है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए लोगों का जज्बा क्या था उस वक्त, कि हरिकिशन तलवार जब जेल में थे, फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, इनके फादर, इनके पिताजी इनसे मिलने पहुंचे, तो ये कहा जाता है, ऐसा मतलब जाहिर सी बात है कोई वैसा रिकॉर्ड तो नहीं है, तो उस जमाने में ये है कि वो काफी दुखी थे, लेकिन दुखी इसलिए नहीं थे कि बेटे को फांसी होने जा रही है। उनका पहला सवाल ये था, तुमने 6 गोली चलाई, लगी क्यों नहीं? तुम नाकामयाब कैसे हो गए? ये कैसे हो सकता है? उसके कुछ दिन बाद ही पिता की भी मौत हो गई। एक और नाम जो कि आमतौर पर लोगों के, चलिए तो नाम और भी बहुत सारे हो रहे हैं, एक और चीज आपको बताना चाहेंगे, गदर पार्टी की बात हो रही है, गदर पार्टी की बात हुई है। गदर पार्टी के बारे में जब बात हुई तो आप लोग एक चीज शायद हम बता दें कि आमतौर पे गदर पार्टी को फेलियर के तौर पे देखा गया है, लेकिन वो इतना भी फेलियर नहीं है। 1915 की फरवरी में, शायद 19 फरवरी थी या 20 फरवरी थी, थोड़ा सा जहन से मेरे निकल रहा है, सिंगापुर में एक जिसमें कि पंजाबी सोल्जर्स थे, ठीक है, पंजाब अब का हरियाणा था, रोहतक था,
ठीक है। तो पंजाबी सोल्जर्स थे, उन्होंने म्यूटिनी कर दी थी और सिंगापुर पर कब्जा कर लिया था और सारे अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया था। और हालत ये थी, वो लोगों से ये पूछते थे कि तुम अंग्रेज हो, अगर किसी ने कह दिया हम आयरिश हैं तो छोड़ दिया, अंग्रेज हैं तो मार दिया। ये अलग बात है। 3-4 दिन लगे वापस सिंगापुर पे कब्जा होने में। कब्जा भी रशियन एक शिप जा रहा था, उसने वापस करवाया था। उसके बाद इन लोगों पर मुकदमा चला, 47 लोगों को लाइन से खड़ा करके गोली मार दी गई। ठीक है। इसमें एक आदमी का नाम बहुत उभरा जो कि पंजाब के ही थे, नूर आलम शाह, जो कि वहां पर किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, कि उन्होंने लोगों को भड़काया है। और बाद में यह भी साबित हुआ कि गदर पार्टी से उनके लिंक साबित थे। इसके अलावा एक और आदमी, आप यहां से जाते हैं दिल्ली में, रोड्स के नाम बहुत हैं, लेकिन किसके नाम पर क्यों रोड है ये आमतौर पर हमें नहीं पता होता है। एक थे बाबा खड़क सिंह। बाबा खड़क सिंह का इंपॉर्टेंस ये है कि अंग्रेजों ने गुरुद्वारों को अपने अंडर ले लिया था। मतलब एक तरीके से उसका जो मैनेजमेंट था वो सरकारी हो गया था और इससे काफी परेशानियां थी। जैसे कि जलियांवाला के बाद ही जो गोल्डन टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो डायर को उन्होंने एक तरीके से सम्मानित किया कि भाई, तो इसी से यहीं से शुरू हुआ था। तो बाबा खड़क सिंह का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पैदा किया, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद पैदा किया, यूनिटी पैदा की, उन लोगों को एक जगह लिया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया। उनका मतलब एक बड़ा रोल है। वो जेल गए, कई बार जेल गए। उसके अलावा एक और नाम जो कि ले चुके हैं सर पहले, सोहन सिंह भकना, जिन्होंने के गदर पार्टी के वन ऑफ द फाउंडर हैं। बाबा गुरदीत सिंह। बाबा गुरदीत सिंह का काफी इंपॉर्टेंस इसलिए हमारी हिस्ट्री में बैठता है कि ये बाहर थे और इन्होंने ही वो शिप ली थी जिसे कोमागाटा मारू कहते हैं, जिस पर से वापस आते हुए सैकड़ों लोगों की जान गई थी। पंजाब के ज्यादातर लोग थे और जो ज्यादातर लोग मरे थे, 400 के करीब लोग उस शिप पर थे। तो वहां पर से ही एक तरीके से कहते हैं क्रांति की ज्वाला जो है वहीं से शुरू मानी जा सकती है। एक तरीके से गुस्सा जो पैदा हुआ पंजाब के अंदर, जिसने कहीं ना कहीं फर्टाइल लैंड बना दिया गदर के लिए और आगे चलने वाले बाकी मूवमेंट्स के लिए, उसमें कोमागाटा मारू का एक बड़ा रोल है। और बाबा गुरदीत सिंह का कोई खास आजकल हम नहीं नाम सुनते हैं, जबकि इनके भी जो लिंक्स हैं हरदयाल से या फिर अजीत सिंह से, वो काफी क्लियर हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं। लेकिन फिर से मैं यही कहूंगा कि सोर्सेज बहुत ज्यादा यूज नहीं हुए हैं। कुछ मेजर किताबें हैं जिनके अंदर लिखकर छोड़ दिया गया है। वक्त मैं काफी ले चुका हूं, तो मैं खत्म करने की तरफ जाना चाहूंगा और मैं इस बात पर आना चाहूंगा कि आखिरी चीज फिर तो 1947 आ गया, पार्टीशन आ गया, विभाजन आ गया या आजादी आ गई, जो भी आप कहना चाहें। पंजाब ने क्योंकि विभाजन भी बहुत करीब से देखा, बाकी देश से उनका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अलग है। तो आजाद हिंद फौज बनी। आजाद हिंद फौज का जो प्रिकर्सर है, जो इंडिपेंडेंस लीग है, वो मोहन सिंह ने बनाई थी। इतना काफी है बताना ठीक है। सरदार प्रीतम सिंह, इतना काफी है बताना। यह भी बताना काफी होगा कि मोइरांग का नाम लिया गया था शुरू में, कि मोइरांग की शॉल जो है वो मणिपुर से लाए, क्योंकि मोइरांग में पहला झंडा फहराया गया। पहला झंडा जिस फौजी ने फहराया, जिस इंसान ने फहराया, वो शौकत अली मलिक था, वो भी पंजाब के थे। ठीक है। तो या फिर इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं तो बहुत से नाम हैं। सिंघाड़ा सिंह हैं, अमरीक सिंह हैं, जिन्हें बड़े बड़े अवार्ड मिले आज़ाद हिंद फौज के। आज़ाद हिंद फौज को अगर आप उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी एक स्टेट के अफसर या फौजी लड़ रहे थे तो पंजाब था। पंजाब से इतना ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ज़्यादा वक्त है, और उसके क्योंकि अगर हम नाम लेना चाहें तो न जाने हम कितने नाम लेते रहेंगे। बस ये कहना चाहूंगा कि जो मैंने एविडेंस की बात कही, एविडेंस वक्त के साथ आएंगे, और भी चीजें होंगी, और लोग भी आएंगे। साहिर ने एक चीज लिखी थी, वो भी लुधियाने के थे, पंजाब के थे, तो मैं उन्हीं की बात से खत्म करना चाहूंगा। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो और भी लोग होंगे जो हमसे ज्यादा ये नाम निकाल कर लाएंगे, रिसर्च लेकर आएंगे, और हमसे ज्यादा पढ़ने वाले भी होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।
साकिब सलीम साहब ने अपने लेक्चर में कुछ पर्टिनेंट सवाल उठाए हैं, जिनमें से मुख्य ये है कि हम जब अपनी जो हिस्ट्री राइटिंग की है कि हिस्ट्री में किसको जो है स्पेस दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है, और जिन हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को स्पेस नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया गया है, तो बड़ा कन्वीनियंटली ये कह दिया जाता है कि एविडेंस नहीं है। तो ये इन्होंने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मसला उठाया है कि हम एविडेंस को तलाश किए बिना ये एज्यूम कर लेते हैं कि एविडेंस इज़ नॉट अवेलेबल, so we cannot use it that write anything about these historical characters which are hidden. दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सलीम साहब ने रेज किया है वो इट रिलेट्स टू पंजाब, कि पंजाब का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु जब हम पंजाब की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम भगत सिंह और कुछ एक दो और नामों को छोड़ करके बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये जो अनसंग जो क्रांतिकारी थे जिनको के इतिहास में जो स्थान मिलना चाहिए था, जो रिप्रेजेंटेशन उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। तो ये क्यों नहीं हुआ है, इसके लिए आई थिंक दैट वी कैन नॉट ब्लेम द लैक ऑफ सोर्सेज के इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उसमें ये हमारे अपने जो है परसेप्शन का भी सवाल उठता है कि जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो ये कि भाई किसको स्थान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। आई एम हैप्पी कि अब ये जो सलीम साहब ने सवाल उठाया है कि जो लेस नोन जो क्रांतिकारी हैं, जिनकी अगर आप बारीकी से देखें तो बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, कि उनको भी आप रिप्रेजेंटेशन हमारे हिस्ट्री में मिलना चाहिए, उनको भी एक सत्कारपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। उन्हें भी हम जो उनको ये भगत सिंह और जो अन्य प्रमुख क्रांतिकारी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, उनके साथ हमें उनका भी यशगान करना चाहिए। अच्छा, अब ये जो लेस नोन जो क्रांतिकारी हैं, उनका किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया गया, इसकी तरफ भी सलीम साहब ने इशारा किया है कि पॉपुलर कल्चर के थ्रू किस तरह से हम ये जो लैक्यूना है इन आवर हिस्ट्री राइटिंग अबाउट द लेस नोन फ्रीडम फाइटर्स, उसको कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे हम उनको जो है पब्लिक के सामने हम पेश करते हैं। उन्होंने एक फिल्म का ये उदाहरण दिया, शहीद, जो कि 1965 में बनी थी, और ये एक बहुत ही जिसे कहते फेमस और ऑथेंटिक फिल्म थी, जिसका एक प्रमुख कारण ये था कि इस फिल्म के जो को स्क्रिप्ट राइटर थे वो खुद एक क्रांतिकारी थे, B.K. दत्त, जो कि भगत सिंह के साथी थे, और उन्होंने भगत सिंह के जब वो बम फेंके गए तो वो भी भगत सिंह के साथ थे। उसके बाद जो एक और फिल्म जलियांवाला बाग पर बनी थी, जिसमें कि उधम सिंह के जीवन के बारे में हमें जानकारी देने की कोशिश की गई थी। शहीद फिल्म में जो है कि जो
कुछ और जो क्रांतिकारी थे, जैसे जिनके नाम लिए सरदार अजीत सिंह, जिनको कि मांडले निष्कासित कर दिया था, और भगत सिंह के फादर सरदार किशन सिंह, उनके बारे में भी हमें शहीद फिल्म से जानकारी मिलती है। कुछ और भी अटेम्प्ट हुए कि फिल्में बनाई गई जिनमें कि क्रांतिकारियों को पर फोकस किया गया, जिनमें एक प्रमुख फिल्म आमिर खान की रंग दे बसंती थी, जिसमें कि भगत सिंह की जो लाइफ है, हिस्ट्री, उसको डिपिक्ट करके आज के कॉन्टेक्स्ट में जो है एक देशभक्ति की भावना को जागरूक करने का प्रयत्न किया गया। सलीम साहब ने ऐसे कई जो हैं अनसंग फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिए पंजाब के संदर्भ में, जिनके बारे में जहाँ तो हमें जानकारी नहीं है और जहाँ जिनको कि बहुत ही इतिहास लेखन में बहुत कम स्थान दिया गया है। आई फुली एग्री विद हिम कि जो स्थान लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को जो है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल में मिलना चाहिए, वो नहीं लिया गया। और भी उन्होंने कई नाम लिए, जैसे जफ़र अली खां की, जो कि एक ये न्यूज़पेपर निकालते थे जिसमें कि देशभक्ति की या जो विदेशी शासन के विरुद्ध जो है लोगों को जागरूक करने के प्रयत्न किए जाते थे। उन्होंने और भी कई नाम लिए, मौलाना उदय बिल्ला, भगवती चरण वोरा, दुर्गा देवी, सैफुद्दीन किचलू, सतपाल, हरकिशन तलवार, नूर आलम शाह, बाबा खड़क सिंह, सोहन सिंह बादना आदि आदि। अब हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि और भी जो इनके अतिरिक्त और भी जो लेस नोन फ्रीडम फाइटर क्रांतिकारी हैं, उनको सामने लाया जाए और इतिहास में उनको जो वो स्थान डिजर्व करते हैं वो देने की कोशिश की जाए। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Professor Dilbag Singh ji, for those very, very gracious words, very beautifully summing up what Saqib Salim has put forward, that we need to. First of all, a lot of work has been done by him in unearthing, along with our legendary historian here, Professor Kapil Kumar ji, to unearth so many Krantikaris, not only from Punjab but countrywide. और ये नाम जो हैं वो बहुत अहम हैं, और जैसा आप सब, मुझे ऐसा लगता था मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, लेकिन हमेशा जहन में 2-3 नाम ही आते हैं। तो क्या वो 2-3 नाम ही हैं या वो हमारी नादानी है? तो धीरे धीरे जब इस तरह की रिसर्चेस होती रहेंगी और भी नाम आते रहेंगे, और साहिर का बहुत सुंदर वो शेर पढ़ा इन्होंने कि और भी लोग आएंगे हमारे बाद काम करने के लिए, तो वो भी बात अपनी जगह सही है। हमारे बीच आज यहाँ मेरे पारिवारिक मित्र लोग हैं। मिलाप लाहौर से जो छपता था वो आनंद स्वामी जी की फैमिली से मेरे पारिवारिक मित्र हैं श्री राजीव लूथरा, who's an eminent corporate lawyer. All of you know this name, Luthra and Luthra. It's India's finest law firm, corporate law firm. उनकी पत्नी गायत्री यहीं सभागार में सुबह से ही उपस्थित हैं हमारे बीच। थैंक यू फॉर कमिंग गायत्री, शी इज़ अ पर्सनल फ्रेंड। और इनसे बातचीत के दौरान मुझे राजीव जी ने, श्री राजीव लूथरा जी ने गत वर्ष पिछले साल बतलाया था कि उनके परिवार में ही इज़ वेरी हम्बल, सो ही डिडंट गिव मी टू मेनी नेम्स देन, बट हम लोग लंच खा रहे थे और सडनली उनके मुंह से निकला कि ऐसे ऐसे ना कोई म्यूज़ियम के लिए मैं जगह देख रहा हूँ और कुछ बात है। तो हमारे परिवार से क्रांतिकारी थे।
तो तब उन्होंने मिलाप न्यूज़पेपर का भी नाम मुझे नहीं बताया था। तो मैंने कहा अच्छा कौन थे, तो इसे कि मैं ऐसे रणबीर सिंह माय मामा जी। हमने नाम नहीं सुना था तो हम चुप हो गए। बाद में जब गायत्री जी से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि नानी जी भी, मतलब राजीव जी की अपनी नानी जो बाद में कपूर हुई, सावित्री सिंह फ्रॉम लाहौर, वो भगत सिंह के परिवार के, भगत सिंह जी और वो साथ में खेलते थे। भगत सिंह जी का बचपन में उनके घर आना जाना होता था, दूध वगैरह भी शायद वहाँ से आता था, ऐसा बतलाया मुझे। और हमारे बीच आज मिलाप के योगी सूरी जी हैं, मैंने उन्हें आमंत्रित किया है और लंच का समय हो गया, हम लंच के लिए ब्रेक करेंगे। 2 मिनट के लिए मैं मंच पर उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि रणबीर सिंह जी, जिन्हें लाहौर कॉन्स्पिरेसी में फांसी की सज़ा हो गई थी लेकिन सज़ा नहीं दी गई, और नानी जी सावित्री सिंह जो बाद में कपूर हुई, जो राजीव लूथरा जी की नानी हैं, इन दोनों के बारे में, बिकॉज लेसर नोन क्रांतिकारी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये महिला थी जो भगत सिंह जी की साथी थी और घर में ये सब डिस्कशन होता था, ऐसा मुझे बतलाया गया। योगी जी, यू आर दी प्लीज, आप आइए। ये एविडेंस, आप लोग कहते हैं एविडेंस होना चाहिए, मेरे पास ये एविडेंस है। आइए, पधारिए। Professor Dilbag Singh ji, Saqib Salim Saab, Kumud ji, and Gayatri Luthra ji, thank you very much for having me here today. It was a very, very interesting session and so many names that I had heard within the family growing up. So I've just come here to tell you about our family. So we've all heard, pen is mightier than the sword. So our family had, of course, was wielding the pen, but they did not let go brandishing the sword. They didn't want to let go of any opportunity to get their motherland freedom. I just wanted to mention that Anand Swamiji started Milap, and all the children, like he turbocharged all the children, every child in his own capacity fought for the country, worked for the liberation, and none of them later took any Tamra Patra because they said they're doing it out of love for the motherland. So Anand Swamiji believed in the power of thought. He felt that more than any action like a bomb or a movement, he has to change people's thinking, change their thoughts. And for that he started Milap in 1923. We are in our 99th year. And he said that through this instrument of social change, I'm going to liberate India by liberating one mind at a time. So that said, every child, so his eldest child was Savitri Kapoor ji. He esteemed elder brother Rajiv Luthra ji's nani, and as we called her at home, Bua ji. So Buaji was small in height, but gigantic in stature, iron-willed, full of fortitude, and every person who met her, was charged with freedom. Every person, not only within the family, but every person who met her came in contact with her. Of course, Kishan Singh ji, Sandhu ji's family, that is Bhagat Singh's father, Ajit Singh ji, Bhagat Singh ji, and the Milap family, they have their roots in the Arya Samaj. So there were common values. There was a lot of intermingling within families. Because Bua ji, that Savitri ji, and Bhagat Singh ji were the same age, there was a lot of intermingling. As a result, Bua ji stirred up the passion for freedom in the women of Lahore, जैसे आप mention कर रहे थे. So especially around Anarkali Bazaar and Anarkali Samaj in particular. Then we had my grandfather, Om Prakash ji, because Milap Ghar very routinely used to have, raids by the British trying to find either a bomb, some incriminating document, anything to, further go ahead and incriminate Milap, put it down.
he used to tell me कि पहले आते थे परछत्ती में छुरे मारते थे, अचार के बयाम डोल देते थे, भाई ये जो बिस्तरे उलट देते थे, गद्दे फाड़ देते थे. So he got sick of it. So he hid sodium in kerosene throughout the parchatti, throughout the achar, so that if a British policeman tried to destroy anything, he was suitably rewarded with a burn or a scalding or something or the other that would punish them back. Then we have Sardar Ranbir Ji. So the eldest son in the family became a Sardar. So he was known as Sardar Ranbir Singh, or Darji as he was affectionately known. He was a governor in the Hindustan Socialist Republic Army started by Bismil. And so, आप नाम ले रहे थे हरि किशन जी का. So Ranbir ji was the co-conspirator in the case. They were both tried under the Punjab governor shooting case, which was later acquitted. Then we have the next son, Yash ji. Yash ji, because he had seen his elder siblings do so much, when he was just 6 years old, there was a British policeman walking in the street. 6-year-old Yash ran, attacked that policeman, and would not let go. He was hitting him with whatever he had. The policeman got sick of this little child hitting him. He caught him, arrested him, handcuffed him, and took him to court. When Yashji is standing in front of the judge, and the judge is looking at him and says, do you know why you were arrested? And it's 6-year-old with handcuffs like this. And Yash does this. The handcuffs slide off. And says, "Aap mere ko giraftar nahi kar sakte. Inqilab zindabad." The next son, Yudhvir ji. Yudhvir ji was actively branded as a terrorist by the British. He never took human life, but he did create a lot of terror with a lot of bombs. And I hear this incident because I have met Yudhvir ji and he told me this himself. He said that earlier, to hide from the British, he went into disguise, hidden in plain sight, as Kalki avatar. कि विष्णु का आखिरी अवतार है, बुरा हाल आया हुआ है. He went hid in a मंदिर, लोगों को रोज प्रवचन दे, शाम को जाके बॉम्बिंग करे. Ultimately, after many months, he was captured. The British caught him, put him in prison at a corner room of the prison, which was just next to the road. They stripped him naked, put him on ice. When he was on ice, they put manjiyan, those little charpais, on his hands, sat on that. And while he is on ice, his hand is there is pressure on his hand. They took little splinters of wood and hammered it under his nail. When I heard it as a child, I couldn't bear it, and I said, any one of them is a lot. So he said, naturally I screamed. I said, Chayaji, then what did you? He said, I didn't do anything. I screamed, it hurt. Loud screams of a strong man. They passed the prison walls. And they went out on the road. People who would pass by, they would hear Yudhvir ji screaming. So they contacted his father, Anand Swamiji, who had a lot of presence, and they said, so much is going on with your son. Why don't you intervene? Why don't you stop it? Immediately the next morning, Anand Swamiji went to prison, met the jailer, sought an audience with his son. And he asked his son, कि ये जो आपने इंकलाब की जंग में आप आए हो, तो किसी ने आपको कहा था आपने आने? He said, नहीं पिताजी. He said, क्या ये अपना फैसला है? He said, मेरा अपना फैसला है पिताजी. So he said, then मेरे को आपकी आवाज़ नहीं सुननी चाहिए. अपनी ताकत दिखाओ अंग्रेज़ों को. ताकत से हराओ. अगर अपना फैसला है, उस पर बुलंद रहो. मगर लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप डर गए हो,
वो आप पे हावी पड़ रहे हैं. And Yudhvir Chari said, never again was there any voice from him. Ultimately, when they captured him, there were 4 truckloads of policemen who came to arrest this one man. I have the photographs. He is coming out of a bank, and far and wide, there's 4 police trucks in the back, more than 100 policemen in front. Everybody has guns, and one unarmed man in a kurta pajama is walking out of a bank. This fervor of nationalism even extended to our extended family, which is to Anand Swamiji's in-laws. There is, I don't know if you have heard of Lala Dhaniram Bhalla of Lahore, of Bhalla Shoe Company. So there was a time when Pandit Nehru went to Lahore Bazaar to gather funds for the freedom struggle. And there is Pandit Nehru. He is, of course, Pandit Nehru. He's sitting in a white kurta pajama with a white basket on a white horse. Behind him, there's a white chadar. And he's walking through the bazaar, and log अपने गहने उसमें डाल रहे हैं, पैसे उसमें डाल रहे हैं, जो उनका जो भी वो डाल सकते हैं कि भाई कहीं पर चंदा मिल रहा है, कहीं पर सोना मिल रहा है कि भाई हिंदुस्तान को आज़ाद करना है. And he is moving his way through the bazaar, and he comes to Bhalla Shoe Company, and Lala Dhani Ram Bhalla is sitting there. He is waiting for Pandit ji, and he asks Pandit ji कि आप कर क्या रहे हो? So Pandit ji tells him कि जी चंदा इकट्ठा करना है, मैं चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ, हिंदुस्तान को आज़ाद करना है, आप क्या दोगे भल्ला जी? So Bhalla ji goes, signs a blank check, and he says, पंडित जी जो लाहौर ने दिए वही रकम मेरे से आप भर लेना, हिंदुस्तान को आज़ाद करना है. So I'm just happy to say that this patriotic fervor continues in our family. Rajiv Bhai, of course, is an eminent nationalist. My father also is trying to instill as many values back in his role as president of the DAV. All the schools, colleges, children that he comes across with. And I must thank you, Kumud ji, and especially Dilbag Singh ji and Sakib ji, for a very, very much needed, revisit of the unsung revolutionaries. Thank you. So much, Yogi ji. Thank you. Thank you. Thank you so much, Yogi ji, and that was a true account and anecdote of lesser known revolutionaries from Punjab, from the undivided Punjab then. जब मैंने सुना था तो मैं समझ नहीं पाई थी उस समय कि ये क्या बोल रहे हैं. बाद में जब मुझे पता चला कि इस तरह से इनके परिवार में था और ये इस तरह से हुए, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मुझे भेजे थे जो मेरे पास हैं, जो मैं कपिल सर को भी दिए, तो बहुत अच्छा भी लगा कि देखिए इतना कुछ अभी है पाने को, जो खो दिया वो तो खो दिया, पाने को भी बहुत कुछ है. Thank you. Without much ado, I invite all of you to join us for a quick lunch. I use the word quick because we have to complete our seminars and run a cultural program also in the evening. The lunch is served outside. All of you, please join us for lunch. All of you sitting in the auditorium, all our illustrious speakers, our chair, our distinguished guests, all of. Yes, it is a snacky lunch because we knew that we will get a bit late. So it is not like a typical dal chawal type of lunch. It is, you'll enjoy this lunch. Please join us. Bye, sir.